How many are already done with this problem? Allocate minimum number of pages. Let's see by the way that what the problem is actually saying us, right? See from here. So let's go to the practice section so that I can access this, and let me try logging in. So what the question is all about, say there are 4 books, right? And these are the number of pages for each and every book. 4 बुक दिए गए हैं, हर एक बुक पे कितनी पेजेस है, these are mentioned here, right? m equal to 2. Among 2 students you have to allocate all the books. एक सिंगल बुक किसी भी एक स्टूडेंट को जाएगा, ठीक है? एक सिंगल बुक किसी भी एक स्टूडेंट को जाएगा और उसके सारे पेजेस उस स्टूडेंट को पढ़ना है. That's what the question is saying, right? So my point is how the allocation is going to take place here, correct? So following are the allocation. See how the allocation overall has to happen. A continuous segment of books you have to allocate to some student S, remaining segment to some other student S dash. Every student, 1, 2 till m number of students, every student should be getting at least some pages. At least some pages, correct? हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ पेज पढ़ने के लिए मिलना ही चाहिए. दैट्स अ मस्ट. ईच एंड एवरी ऑफ द स्टूडेंट should be getting at least some pages. Okay, now my point is you have to allocate the number of pages, right, quite equally. Fine. Equal division should be promoted. It's not that one of the student is getting 100 pages and second student is getting just a single page to read. From second till student number m, she is getting just a single page to read for. This should not happen at all. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. अगर मेरे पास चॉइस है, ठीक है, कि मेरे पास 4 स्टूडेंट है सपोज और ओवरऑल 100 पेजेस है 4 बुक्स मिला के, मेरी कोशिश होनी चाहिए चारों को 25-25 के अराउंड पेजेस मिल जाए ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे. करेक्ट? सो आई शुड बी अवॉइडिंग सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स where one student, the maximum number of pages any student is getting is quite high, and I should be promoting that, okay, the overall maximum any of the student is getting should be as minimum as possible. समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? किसी भी एक स्टूडेंट को जो मैक्सिमम पेजेस ओवरऑल होल्ड करता है अमंग ऑल स्टूडेंट्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल ताकि इक्वालिटी मेंटेन. ठीक है, ताकि क्या हो, इक्वालिटी गेट्स मेंटेन. Okay, so let's see that given inside the example, wherever whatever has been given to us, right? Whatever has been given to us. So what kind of arrangement has been promoted? Just a moment, give me यार ये क्या हो रहा है? So this is it. Suppose your number of books are 4, as when each and every of the books are having following pages, correct? Okay, then so possible arrangements are you give only the book number 1 to student 1 and remaining 3 books I have to give to student 2, correct? What's the maximum pages we are having for any of the student? Student 1 को सिर्फ 12 पेज मिले, बाकी रिमेनिंग जितने भी पेजेस है 191 पेजेस. 191 पेजेस है वो किसको मिला? स्टूडेंट 2 को मिल गया. ठीक है, ओके फाइन. सो ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है. नेक्स्ट और क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल होगा? लेट्स सी बाय द वे. लेट मी राइट इट एंड लेट्स सी. So overall it's gonna be 12, 34, 67, 90, right? 12, 34, 67 and 90. So book inside the first arrangement, right, 12 has been allocated to student 1, remaining 34, 67, 90 has been allocated to student 2 for us, correct? So overall maximum number of pages any of the student getting is the second one, that's 191. Okay, then I think the another arrangement is possible is 12, 34 आप student 1 को दे दो, 67 and 90 आप student 2 को दे दो. मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किस स्टूडेंट को जा रही है? कंटिन्यूअस सेगमेंट ऑफ बुक्स किसी एक स्टूडेंट को जाएगा,
अगर ये बुक मैंने सेकंड स्टूडेंट को दे दी तो यहाँ से लेके कंटिन्यूअस सेगमेंट फिर स्टूडेंट 2 को ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ब्रेक ब्रेक करके बुक्स किसी को दे पाऊँ। ओके, सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट शुड बी अवॉइडेड। करेक्ट। So what's the maximum number of pages any of the student is getting here? 67 plus 90 कितना हो रहा है? 157, right? Okay, fine. So as compared to this arrangement, ये arrangement अपना better है। क्यों? किसी भी student, let that be student number 1, let that be student number 2, जिसको maximum number of pages मिल रहा है, ठीक है? In this arrangement, the overall maximum number of pages is quite a bit minimized as compared to that of the previous arrangement. Correct? One of the last arrangement that is possible is 12, 34 and 67. ये आप student 1 को दे दो, 90 आप student 2 को दो, right? So overall ये आप student 1 को maximum number of pages allocate हो रहा है. I feel this is 113 for us. Correct? This is 113 for us. And overall in तीनों arrangements को आप देख लो, arrangement 1, arrangement 2, arrangement 3, right? This was the last arrangement that's possible. यहाँ पे maximum number of pages that has gone to any of the student is minimized as minimum as possible. So this arrangement will be my answer. और क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या मांगता है? अरेंजमेंट रिटर्न करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में फाइनल आंसर मांगता है कि आउट ऑफ ऑल द परम्यूटेशंस, जितने काइंड ऑफ परम्यूटेशंस आप ट्राई कर लो, द गोल इज टू फाइंड द परम्यूटेशन वेयर द सम ऑफ maximum number of pages in a book allotted to student should be minimum out of all permutation. ओवरऑल ये जो मिनिमाइज्ड नंबर ऑफ पेजेस है जो किसी भी स्टूडेंट को जा सकता है, ठीक है, इनसाइड द गिवन अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, राइट, वो मिनिमाइज्ड वर्जन ऑफ पेजेस ओवरऑल है क्या? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रिंट एज योर फाइनल आंसर। ओके, सो फॉर द फर्स्ट एग्जांपल इट्स कमिंग आउट टू बी 113. दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रिंट। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किस स्टूडेंट को गया, कैसे अरेंज कर रहे हो आप, कैसे अरेंज कर रहे हो आप, और ओवरऑल ये बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट करने के बाद ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है जो किसी भी स्टूडेंट को जा रहा है, ओके, वो एज मिनिमम एज पॉसिबल होना चाहिए। वो मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस है क्या? दैट्स व्हाट आई हैव टू प्रिंट। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई हैव टू प्रिंट। ओके देन एक और एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या आ रहा है? 15, 17 एंड 20, 15, 17 एंड 20 दो स्टूडेंट को फिर से देना है। वन चॉइस इज यू गिव 15 एंड 17, 22 either of the student. So maximum number of pages जा रहा है यहाँ पे 37, ठीक है। ओके, एक और अरेंजमेंट ओनली पॉसिबल होगा 15, 17 एंड दैट्स गोना बी इक्वल टू दैट ऑफ स्टूडेंट 1 एंड 20 जाएगा स्टूडेंट 2 को। करेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस किसको गया? स्टूडेंट 1 को, ठीक है ना। तो कितनी जा रही है? 32। सो एज कंपेयर टू दिस अरेंजमेंट आई फील दिस अरेंजमेंट इज बेटर, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस एलोकेट हो रहा है, करेक्ट, वो मिनिमम पॉसिबल है इस अरेंजमेंट। So overall answer is going to be 32 in our case. Okay, overall arrangement is going to be 32 in our case. All fine. Bolo, question is clear for everyone? Is the question clear for everyone? First tell me this. What the question is trying to convey, is it clear for everyone? Let me know. Is the question clear based on the example, based on the question explanation? ये question clear है सबको? पहले वो बताइए कितने लोगों? दिया, हिमांशु, सागर, अर्शप्रीत। Question is clear? Okay, I'm giving you 2-3 minutes or 5 minutes. Take it and think on the problem. इसका solution आएगा कैसे? क्या करेंगे कि solution आ जाएगा? Do it all, please. Given the link to the problem, go here. Try to think how would we bring the overall solution. Please do it all.
ओके, एनी सॉल्यूशन एनीवन हैज गॉट? बताओ कैसे सॉल्व करेंगे ऑल ऑफ यू? हाउ वुड यू सॉल्व दिस? द मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस मिलेगा कैसे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस टू एनी ऑफ द स्टूडेंट नीड्स टू बी मिनिमाइज्ड, कैसे मिलेगा ये? एनीवन? एनीवन? 15, 17 and 20, right? This is how they have mentioned that all the three books, what are the number of pages? ठीक है, तो जब आप ith स्टूडेंट को राइट एक कंटिन्यूअस, सपोज दैट आप ith स्टूडेंट को फर्स्ट बुक से अलॉट कर रहे हो तो फर्स्ट बुक से लेके कंटिन्यूअस सेगमेंट उसको एलोकेट हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया नेक्स्ट बुक से, जो दैट इज स्टिल अनएलोकेटेड बाय द वे, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स बाकी अदर स्टूडेंट्स को एलोकेट होना स्टार्ट हो। ठीक है, सो मुझे बताओ किसी भी स्टूडेंट को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस होल्ड कर रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिनिमाइज करनी है सो दैट इक्वल डिवीजन गेट्स प्रमोटेड। हाउ शुड आई डू इट? ओवरऑल मान लो दो स्टूडेंट्स है जिसको मुझे पेजेस से एलोकेट करने हैं, राइट? लेट मी से दैट लेट्स चेंज द वैल्यू अ लिटिल बिट एंड लेट द वैल्यूज बी समथिंग लाइक दिस 1 5 7 9 7 9 12, करेक्ट? अब मुझे एक बात बताओ, एंड लेट देयर बी 3 स्टूडेंट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद, 3 स्टूडेंट्स को एलोकेट करना है, करेक्ट? तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो किसी भी स्टूडेंट को जा सकता है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस that we can allocate to any of the student present here. What that can be? What that can be? Situation is, देखो, minimum number of pages that can go to any of the student, that would always be one. एक पेज तो सब हर किसी को मिलना ही चाहिए। मैक्सिमम है आप सारे बुक्स एक स्टूडेंट को एलोकेट कर दो, वही ओवरऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना? सारे बुक्स एक ही स्टूडेंट है जिसको एलोकेट करना है और सारे बुक्स उसको एलोकेट कर दो। 21, 28 and 34. Maximum 34 would be the number of pages I can allocate to any of the student. ठीक है? Okay then. What is the mid of this? 17. 17 is the overall mid of the overall number of pages. Search space मेरा क्या बना? Minimum से लेके maximum. Minimum is 1, maximum is 34. Mid 17 is the number of pages, right? अब कैसे analogy क्या रखेंगे? जो भी करंट मिड वैल्यू है, राइट, इससे ज्यादा पेज किसी भी स्टूडेंट को एलोकेट नहीं करना है। 17 पेजेस से ज्यादा किसी को भी एलोकेट नहीं करना। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस। तो हमें एलोकेशन करूंगा कैसे? बोलो कैसे एलोकेट करेंगे? 1 5 7 9 12 कैसे एलोकेट करोगे आप बताओ? सो स्टार्ट ऑफ, राइट, एलोकेट योर फर्स्ट बुक, एलोकेट योर फर्स्ट बुक जिसमें पेज कितनी है? 1 तो स्टूडेंट नंबर 1, ये स्टूडेंट नंबर 1 को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाली भी स्टूडेंट नंबर 1 को दे सकते हैं क्या? बोलो, नेक्स्ट वाला क्या स्टूडेंट को दे सकते हैं? स्टूडेंट नंबर 1 को। मिनिमम जो मैक्सिमम पेज है किसी भी स्टूडेंट को एलोकेट करना है ओवरऑल बुक्स में, दैट शुड बी नो मोर देन 17। 5 ये बुक जो है दैट इज हैविंग 5 पेजेस, कैन आई एलोकेट दैट टू स्टूडेंट 1? यस आई कैन, बिकॉज ओवरऑल इस ये भी दे दिया तो अभी तक 6 पेजेस ही बन रहा है। ठीक है, ओके देन व्हाट एल्स, क्या कर सकते हैं नेक्स्ट? क्या ये बुक दे सकते हैं स्टूडेंट नंबर 1 को? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, ओवरऑल फिर 13 पेजेस ही बने। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, कैन आई एलोकेट दिस पर्टिकुलर बुक टू स्टूडेंट 1? नो। अगर ये दे दिया 17 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? सो आई वुड से दैट ओके, इस जगह से आप स्टूडेंट नंबर 2 को बुक एलोकेट करना स्टार्ट कर दो। अब बुक एलोकेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ओवरऑल आंसर मेरे पास अभी तक -1। क्या अभी कोई एलोकेशन ऐसा मुझे मिला नहीं है फिलहाल बिफोर स्टार्टिंग, which is actually giving me a choice that okay, how can I allocate books to all the students? Okay, till the time I'm having a choice, let the answer be -1. नेक्स्ट मैंने क्या किया, 9 पेज वाली बुक को स्टूडेंट 2 को दे दिया। ये भी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। 12 पेज वाली अगर मैंने बुक स्टूडेंट 2 को दे दी, क्या होगा फिर? 17 को क्रॉस कर जाएगा, व्हाट इज नॉट अलाउड। सो आई शुड एलोकेट दैट टू स्टूडेंट 3। ठीक है, सारे 3 स्टूडेंट को बुक मिल गए, सारे 3 स्टूडेंट को कंटिन्यूअस सेगमेंट्स में बुक भी मिल गए। ठीक है, ऑल फाइन। और या ऑल द बुक्स हैव बीन एलोकेटेड, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉट द बुक। सारे बुक एलोकेट भी हो गए जो कि रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एवरी बुक हैज टू बी एलोकेटेड एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी गेटिंग एटलीस्ट अ पेज, सो दैट्स फाइन। अच्छा ठीक है, मेरी इस एलोकेशन में मुझे मिला
अगर मैं ओवरऑल 17 को बार लगा देता, 17 पेजेस पे, दैट एनी स्टूडेंट शुड नॉट बी गेटिंग मोर देन 17 पेजेस. इफ दिस इज द बार, राइट, आई एम सेटिंग 17 कैन बी अ पॉसिबल चॉइस ऑफ माई आंसर. 17 को बार रख लिया, मैं आंसर को अपडेट, क्योंकि एलोकेशन पॉसिबल हो गई सारे स्टूडेंट की, आई कैन जस्ट सेफली से दैट ओके 17 कैन बी अ पॉसिबल चॉइस फॉर अस. लेट्स ट्राई नैरोइंग द जोन. ओके, अगर 17 को बार सेट करके आंसर तो पॉसिबल है, इससे भी छोटा कोई आंसर पॉसिबल है क्या? करेक्ट. So let the search space right now for us be in between 1 to 16. And mid आएगा इसका 8 पे. Mid would be at 8. No more than 8 pages मैं किसी भी स्टूडेंट को allocate करूँ. Correct. Let the array be again, array of books for us is 1, 5, 7, 9 and 12. Correct. 1, 5, 7, 9 and 12. क्या होगा फिर यहाँ पे ओवरऑल? Let's start. Allocate first book student number 1. कर सकते हैं. Second book कर सकते हैं. No problem at all. No problem at all. ठीक है. थर्ड बुक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर थर्ड बुक करोगे तो 8 नंबर ऑफ मैक्सिमम पेजेस क्रॉस कर जाएगा. सेकंड स्टूडेंट को एलोकेट कर दो. ओके, सेकंड स्टूडेंट को ये वाली बुक एलोकेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? थर्ड को कर दो. ओके, थर्ड को भी कर सकते हैं क्या? कैन आई एलोकेट दीज बुक्स, राइट, 9 and 12 टू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स? इज इट पॉसिबल? सी, ये इकलौते, ये जो स्टूडेंट है, ये जो बुक है मेरे पास, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस जो मुझे अभी फिलहाल एलोकेट करना है उससे ज्यादा पेजेस है. तो ये पर्टिकुलर बुक, राइट, किसी को भी एलोकेट हो ही नहीं सकता. ये पर्टिकुलर बुक किसी को भी एलोकेट कभी हो ही नहीं सकता. सो दिस बुक इफ कैन नॉट बी एलोकेटेड, करेक्ट, एक भी बुक खाली नहीं जाना चाहिए. हर एक स्टूडेंट को एक ना एक बुक मिल ही जाना चाहिए. एवरी बुक शुड बी ऑक्युपाइड, एवरी स्टूडेंट शुड बी गेटिंग बुक्स. So if this book cannot be allocated to any of the student, right, this particular arrangement where the bar has been set such a low that arrangement is not going possible, right, ओवरऑल एलोकेशन इज नॉट एट ऑल गोइंग पॉसिबल. जो भी आंसर 17 था आप रख लो. 8 मैचअप नहीं करा पाया, अब क्या करो, थोड़ा जोन को ब्रॉडन अप करो कि ठीक है इतना छोटा बार रखोगे, एलोकेशन जब पॉसिबल नहीं है, यू जस्ट एक्सटेंड द रीजन, सर्च फॉर अ हायर नंबर ऑफ पेजेस. सो माई नेक्स्ट सर्च जोन वुड बी इन बिटवीन 9 to 16. ठीक है, 16 plus 9, 25, 12 would be your mid. 12 would be your mid, right? What's the array of books we are having? 1, 5, 7, 9 and 12. टोटल 3 स्टूडेंट्स को देना है, राइट, टोटल 3 स्टूडेंट्स को देना है. ओके, स्टूडेंट 1 would be getting first both the books. 12 should be the maximum pages anyone should be getting. स्टूडेंट 1 को पहले 2 बुक्स दे दो, नो प्रॉब्लम. स्टूडेंट 2 को थर्ड बुक दे दो. 7 should be the number of pages. ठीक है. ओके, 12 पेज दे सकते हैं ना, वो तो सारे बुक सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, पर देखो मैंने कहा स्टूडेंट 2 को 7 दे दी, क्या मैं स्टूडेंट 2 को ये बुक दे सकता हूँ थर्ड वाली? स्टूडेंट 2 को मैं बुक दे सकता हूँ थर्ड इंडेक्स वाली और बेसिकली विद पेजेस 9? नो, आई कैन नॉट. तो मुझे यहाँ से स्टूडेंट 3 को देना पड़ेगा. करेक्ट. स्टूडेंट 3 को आपने 9 वाली दे दी, ठीक है. सो लास्ट वाली बुक देखो किसी को दे ही नहीं सकते. If I allocate this particular book to my student number 3, he is gonna cross the limit of 12 pages. तो ये बुक मैं किसी को नहीं दे सकता, ये बुक मैं किसी को नहीं दे सकता. एक भी बुक बच गया मतलब कि अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है. और या फिर अगर ये मान के चलो मेरे पास 3 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, राइट, लास्ट बुक तक पहुंचते पहुंचते सारे को बुक एलोकेट हो गई, और जो मैंने बार सेट किया है, अगर मैंने फर्दर बुक्स एलोकेशन की तो बार क्रॉस हो जाएगा. बार क्रॉस हो जाएगा जो कि करंट सर्च में नहीं होना चाहिए. मुझे एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट चाहिए, फोर्थ स्टूडेंट, ताकि जिसे मैं ये बुक दे दूं. करेक्ट. और ओवरऑल एलोकेशन पॉसिबल हो. बट स्टूडेंट्स अवेलेबल इज 3 ओनली, नॉट मोर देन दैट. स्टूडेंट अवेलेबल इज 3 ओनली, नॉट मोर देन दैट. जब भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आएगी मतलब एलोकेशन पॉसिबल नहीं है. 2 टाइप की एलोकेशन पॉसिबल नहीं है जो हमें हमें अभी देखने को मिला. सारे स्टूडेंट्स को बुक तो मिल गए बट कुछ बुक्स बच गए बिकॉज ऑफ द बार वी हैव सेट. करेक्ट. ये कुछ बुक्स जो है जो एलोकेट कभी हो नहीं सकते. करेक्ट, ये एक बात है. अच्छा, और सर्टेन कंडीशन है, बार इतना लो सेट हुआ है कि कुछ बुक्स जो होंगे, ठीक है ना, वो किसी को एलोकेट होंगे ही नहीं. ना ही कि स्टूडेंट्स कंप्लीट होंगे. कुछ फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप एलोकेट कर दोगे, उसके बाद फ्यू स्टूडेंट्स को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, समथिंग लाइक दैट, they won't be at all getting books. Why? Because of the bar we have set. These number of books are having much higher number of pages as compared to the bar. तो ये पर्टिकुलर बुक्स किसी को कभी अलॉट हो ही नहीं सकते. यहाँ पे देखो जो बार सेट किया गया है, दैट्स फेयर.
बार फेयर है, बट क्या हो रहा है, बार को सेटिस्फाई कराते कराते सारे स्टूडेंट को बुक्स तो मिल गए बट कुछ बुक्स बच जाएंगे, they won't be allocated to anyone else. These are the two scenarios जब allocation possible नहीं है, ठीक है, ओके। और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, तो देखो बिकॉज द बार इज स्मॉल, कुछ बुक्स कभी एलोकेट हो ही नहीं सकते, इवन की स्टूडेंट्स अवेलेबल है, थर्ड स्टूडेंट अवेलेबल है, बट ये बुक्स कभी एलोकेट हो नहीं सकते, सो एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एक सिनारियो देखो, स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा स्टूडेंट चाहिए तब जाके बुक एलोकेशन पॉसिबल होगी, तो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल, राइट। ओके, सो इफ दिस इज द सीन वी वुड अगेन ब्रॉडन अप द एंटायर रीजन, बोलेंगे चलो 13 से लेके 16 तक का सीन देखो क्या होता है। So overall, I feel here 14 would be your mid, 14 would be your mid, and our overall number of pages are 1, 5, 7, 9, and 12. ठीक है? I think I can allocate the first book. Okay, so 14 number of pages we are checking for. That 14 को अगर बार सेट कर दिया, क्या सारे स्टूडेंट्स को सारे बुक्स एलोकेटेड है, हो सकते हैं क्या? तो चलो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टूडेंट, फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक, एंड आई फील थर्ड बुक स्टूडेंट 1 को एलोकेट कर दो, पॉसिबल है। स्टूडेंट 2 को ये वाली बुक, स्टूडेंट 3 को ये वाली बुक, ठीक है, सारे बुक्स एलोकेट हो गए सारे स्टूडेंट्स को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 14 which is much the number which is lower than the number of pages so far we have considered, right? अगर मैं इसे बार सेट करता हूं तब भी बुक एलोकेशन पॉसिबल है, तो आप क्या करो, अपडेट कर दो। If I keep the overall bar to be 14, still I am getting the correct answer. The allocation is fully possible, no problem at all, right? Okay, 14 को बार सेट करके आंसर रख सकते हैं, right? Well, let's try a further lower value of the region, that is 13. 13 एक ही वैल्यू बचा हुआ है ओवरऑल रीजन का, इसे बार सेट करके अपना आंसर ला सकते हैं क्या? So let's try on to that. So overall 1, 5, 7, 9, 12 है अपने पास। क्या होगा, स्टूडेंट वन को फर्स्ट 3 बुक्स दे देंगे, स्टूडेंट 2 को नेक्स्ट, स्टूडेंट 3 को नेक्स्ट, तब भी एलोकेशन पॉसिबल हो गई। लास्ट नंबर था अपने रीजन का, that is further lower than 14, so that's gonna be my answer finally. Okay, so 13 is the lowest number of pages for us, right? 13 वो वैल्यू है, right? Lowest number of possible value, such that इस पे मैं अगर बार सेट करूं सारे स्टूडेंट्स को बुक भी एलोकेट हो जाएंगी, right? और किसी भी स्टूडेंट को 13 से ज्यादा पेजेस नहीं मिलेंगे। So that's how we are gonna narrow down our overall region of binary search into hubs. ठीक है, कुछ केसेस में क्या बुक एलोकेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा। व्हाट इज इट, आपने जो बार सेट किया है मिड वाली, राइट, कुछ बुक्स है जिसमें उससे ज्यादा पेजेस है, तो ये बुक्स कभी एलोकेट होंगी ही नहीं, ये बुक्स कभी एलोकेट होंगी ही नहीं। और क्या है, स्टूडेंट्स अवेलेबल है बट बुक्स वोंट बी एलोकेटेड, राइट, एंड देयर वुड बी मोर सिनारियोस कि जो बार सेट किया गया, राइट, फेयर, सारे नंबर ऑफ बुक्स आर एक्चुअली फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस ओनली, कि ये जो पेज है सारे बुक्स उसके अंदर ही आते हैं, बट ये बार फिर भी फेयरली स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि सारे स्टूडेंट लास्ट बुक आते आते सारे स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो जाएंगे और कुछ बुक्स स्टिल बाकी रह जाएंगे, स्टूडेंट बाकी नहीं है, बुक्स बाकी, ठीक है। तो इन दिस बोथ द सिनारियोस वी कैनॉट एलोकेट द बुक, सो दीज टू मिड शुड बी अवॉइडेड। ये दो मिड पे अगर मैंने आंसर अपना बार सेट किया तो कभी आंसर मिलने नहीं वाला, एलोकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। इन दोनों केसेस में क्या करूंगा, मैं रीजन को बड़ा करूंगा, आई वुड कीप ऑन सर्चिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ माई करंट मिड। ठीक है, इतना दूर क्लियर है सबको? पहले वो बताओ, इतना दूर क्लियर है सबको? पहले वो बताइए, एलोकेट मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, इतना दूर क्लियर है या नहीं? फर्स्ट टेल मी दैट, ऑल ऑफ यू। ओके, एक और सिनारियो आप देख लो, एक और सिनारियो आप देख लो वेयर एक्चुअली आंसर इज पॉसिबल। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसा है 1, 5, 9, 17, करेक्ट, दिस इज द okay okay, let me say that 1, 5, 9 and 100, correct, 1, 5, 9 and 100 इतना रखें या क्या करें? I feel just a moment, give me. Okay, then let's see. Suppose that these are the number of pages for us. There are 4 books here and total of 3 students again. ठीक है, 3 students है। तो पहले बताओ, जब मैं बुक एलोकेशन पॉसिबल, whenever I would be allocating books, मिड की आएगी 9, 5, 14, 15, 115, ठीक है। सो आई फील ओवरऑल मेरे पास 1 से लेके 115 तक की चॉइस है, तो इसका मिड क्या आता है? 1 से लेके 115 तक इसकी मिड क्या आएगी? 116
डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगी बोलो? 58 आई फील राइट। ओवरऑल किसी भी स्टूडेंट को आप 58 नंबर ऑफ पेजेस दे सकते हो। थोड़ा लोअर डाउन करे क्या कि 100 तो ज्यादा हो रहा है। अच्छा ठीक है, सो लेट्स से दैट थोड़ा बैलेंस करते हैं, चलो नंबर ऑफ पेजेस को 1550 कर लेते हैं, ठीक है। 1550 सो ओवरऑल आपकी 106 आ रही है। और 106 पे क्या मिलेगी? 53 इज द मैक्सिमम पेजेस दैट आई कैन एलोकेट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, 1 से लेके 106 तक, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एलोकेशन स्टूडेंट्स की होगी कैसे? स्टूडेंट्स हाउ दे वुड बी एलोकेटेड टू द बुक्स? फर्स्ट बुक वुड बी एलोकेटेड टू स्टूडेंट 1, सेकंड बुक वुड बी एलोकेटेड टू स्टूडेंट 1, आई फील राइट। होगा या नहीं होगा बोलो? होगा या नहीं? हेलो। hmm, होगा या नहीं? लेट मी नो ऑन दिस। कैसे? एक और सिनारियो आएगा, रुको, जो एक्चुअली अपने केस में आ नहीं रहा है और मुझे बताना है। Okay, let's remove this another 50. Let the number of books for us is 3, right? And we are having what? 50 plus 6, 56 overall. ठीक है ना? फिर घट जाएगा यार, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। लेट मी थिंक फॉर एन एरे। जब थोड़ा ओवरऑल सिनेरियो बैलेंस्ड है, ठीक है। मान लो 25, 25, 25। This is the overall number of pages we are having. There are 3 students, right? And yes, that's fine. So 25, I think 1 plus 75, I think 38 would be the number of pages at max anyone would be getting, suppose. ठीक है, 38 would be the number of pages any of the student would be getting. फिर भी नहीं आ रहा ऑलमोस्ट, क्या करें? 1 plus 25 पर प्लस 25 अगर किया जाए, या फिर सपोज 15 ले लूं मैं इस वैल्यू को। चलो एक मिनट, लेट दैट बी 12 या 13, ठीक है। 12 या 13, चलो इससे मान लेते हैं। एक सिनेरियो है जो मुझे कवर करनी है बाय द वे, सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग फॉर एन एग्जांपल। प्रीवियस सिनेरियोस जो भी हो रहा था, हाउ दैट्स वर्किंग, वी हैव सीन देम ऑल। 50 and that's overall it's gonna be 63, minimum one is gonna be 1 plus 63 divided by 2 कितना आएगा? 64, 32 आएगी राइट। 32 मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। यार को क्या ही एग्जांपल पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 5 कर देते हैं, ठीक है। दैट वुड वर्क फॉर अस। ओके देन बोलो, 3 बुक है तो ये तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होगा। एक और केस, कॉर्नर केस हमें दिख रहा है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है वो गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है। तो अगर मैं सारे स्टूडेंट को एक एक बुक भी एलोकेट करूं तो भी 2 स्टूडेंट बच जाएंगे, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ सिनेरियो आल्सो नो एलोकेशन कैन बी मेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर -1 होगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर -1 होगा। नाउ सपोज दैट आपके पास समथिंग लाइक दिस है, 1 2 2 2 3 4, these are the books, all are having lesser number of pages for us, correct? All are having, and suppose m equal to what? m equal to 5, फेयरली गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास। बुक्स भी ग्रेटर है, सारे बुक्स में स्मॉलर नंबर ऑफ पेजेस हैं। ओवरऑल 5, ओवरऑल मेरे पास क्या है? 5 स्टूडेंट्स है जिसको एलोकेट करना है, राइट। कितनी है मेरे पास? 1 2 2 2 6 7 9 and 12 and 16, right? 1 plus 16 divided by 2, so I think 8 number of pages at max I can provide to any of the student। किसी भी स्टूडेंट को at max 8 पेजेस एलोकेट कर सकता हूँ। सो लेट्स डू इट। आई थिंक स्टूडेंट नंबर 1 को इतना जाएगा, स्टूडेंट नंबर 1 को ये भी चला जाएगा, 1 एंड 1, राइट। स्टूडेंट नंबर 1 को पहले 4 बुक्स चले गए, स्टूडेंट नंबर 2 को नेक्स्ट 2 बुक्स गए, स्टूडेंट नंबर 3 को लास्ट बुक चला गया। अब मुझे एक बात बताओ, एज पर द एनालॉजी दैट्स हाउ वी वर एलोकेटिंग, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि बाकी 2 स्टूडेंट्स को क्या बुक एलोकेट करना पॉसिबल है या नहीं है? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैं, हमारा एलोकेशन क्या है? ग्रीडी एलोकेशन। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को लिमिट के अंदर रह के जितना बुक्स एलोकेट कर सकते हो करो। दैट्स व्हाट वी वर सीइंग, एम आई करेक्ट? दैट्स व्हाट वी हैव सीन सो फार। एक स्टूडेंट को लिमिट के अंदर रह के जितना बुक्स एलोकेट कर सकते हो करो, ग्रीडीली एज मच एज पॉसिबल बुक एलोकेट करते रहो एक स्टूडेंट को। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में मेरे को दिख रहा है कि 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट को एलोकेट नहीं हुआ, 2 स्टूडेंट को नहीं हुआ। सो इज दिस अ वैलिड एलोकेशन? इज दिस अ वैलिड एलोकेशन? लेट मी नो ऑन दिस। क्या लगता है, क्या ये पर्टिकुलर
एलोकेशन वैलिड है या नहीं है? व्हाट वुड यू से दिस टू मी, ऑल ऑफ यू? कितने लोग हो? दिया, सागर, हिमांशु और हर्षप्रीत, ये वैलिड एलोकेशन है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दो, बताओ। कुछ तो बोलो, कहां पर हो? वैलिड और इनवैलिड? दिया, हिमांशु, सागर। हिमांशु ने आंसर दे दिया, बाकी? और कौन है? हर्षप्रीत, बताइए जनाब। मैं अगर वैलिड बोलूं मानोगे? मैं अगर वैलिड बोलूं मानोगे कोई? मैं अगर वैलिड बोलूं मानोगे कोई? ठीक है, देखो, ये जितने भी बुक्स आपको दिए गए हैं, राइट, मैं 3 स्टूडेंट्स में एलोकेट कर सकता हूँ। तो क्या मैं 5 स्टूडेंट में भी एलोकेट कर सकता हूँ? इज इट वैलिड? प्रीवियस वाला एक केस मुझे मिला था, सारे स्टूडेंट को एलोकेट कर दिया और एक्स्ट्रा चाहिए, जो इतना बार सेट किया है ना, बार सेट के अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट का एलोकेट, तो एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा अवेलेबल है नहीं एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। अब मेरा एलोकेशन है कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ही हो गया है, क्या बाकी को एकोमोडेट कर सकते हैं? कैन वी एकोमोडेट द लेटर वन? कैन वी एकोमोडेट द रेस्ट वन? सी, मैं क्या करूंगा, अगर मैं 3 को एलोकेट कर सकता हूं तो मैं 5 को भी एलोकेट कर सकता हूं। कैसे? जिस भी स्टूडेंट को, राइट, थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स चले गए ना, उसको उससे ले लो और क्या करो, बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उसको एलोकेट कर दो, फाइन। स्टिल ये केस वैलिड है, स्टिल ये सिनारियो वैलिड, कि सारे स्टूडेंट जो भी है उसको 8 से कम पेजेस मिले हुए हैं। एंड राइट नाउ, व्हाट आई एम एबल टू सी, मैंने कुछ बुक्स स्टूडेंट 1 से ले लिए और 4th और 5th वाले को दे दिए। एटलीस्ट एक एक बुक सारे स्टूडेंट को भी मिल गया और सारे बुक्स भी एलोकेट हो गए। कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? तो देखो, आपको एग्जैक्ट एलोकेट ऐसे नहीं करना है, यू हैव टू चेक द कंडीशन दैट इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, if the total number of students whom the books got allocated it is lesser than equal to m, exactly कितनों को allocate हुआ? अगर lesser than equal to m है तो allocation with the current mid bar is possible। ठीक है, क्योंकि अगर लेसर का केस आता है ना, आप लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सारे बुक्स को एलोकेट कर चुके, तो एनालिटिकली, क्या एनालिटिकली मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, जिसको एक्सेस गया ना उससे थोड़े बहुत बुक्स ले लो और उसे क्या करो, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उसमें आप एक ये कर दो, spread out कर दो। So that's how my allocation is done. I don't have any problem onto that। सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स को बुक गए थे ऑलरेडी मिड से लेसर देन इक्वल टू थे, नो प्रॉब्लम ऑन टू दिस। सो अगर मैं जिसको मैक्सिमम वाला गया था, सम स्टूडेंट्स हैव गॉट एक्सेस बुक्स एज वेल बेस्ड ऑन द बार वी एफ, बार के बाहर कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं किसी स्टूडेंट से थोड़े बहुत बुक्स ले भी लूँ तो उसके पेजेस फर्दर घट जाएंगे, उसके पेजेस फर्दर घट जाएंगे। ऑलरेडी द नंबर ऑफ पेजेस द स्टूडेंट हैज गॉट इट्स लेसर देन इक्वल टू द मिड, ऑलरेडी ये है। तो अगर उससे आप थोड़े एक्स वाई बुक्स माइनस भी कर दो तो वो स्टिल भी लेसर देन इक्वल टू, जो पी इज लेसर देन इक्वल टू मिड, दैट स्टिल वैलिड, नो प्रॉब्लम ऑन टू दिस, नो प्रॉब्लम ऑन टू दिस, राइट। सो एनालिटिकली अगर लेसर देन एम का सिनारियो आता है, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सारे एलोकेट हो गए, ठीक है ना, कुछ एनालिटिकली मैं सोच सकता हूँ, इन दिस केस फ्यू ऑफ द बुक्स आई वुड बी टेकिंग अवे फ्रॉम द मैक्सिमम वंस, एलोकेट देम टू द रेस्ट वंस, जो बच गए उनमें दे दूंगा, ठीक है। और अगर बराबर पे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नो नीड टू थिंक ऑफ एनीथिंग। Only the situation should be total number of students greedily whomsoever I have allocated the books with certain number of pages. If it is lesser than equal to m, then overall corresponding to the current mid right allocation is possible. Allocation is possible. एंड रिमेनिंग ये जो 2 केसेस है अपने, 3 केसेस, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे तो कभी एलोकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, सो आंसर वुड बी ऑलवेज -1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बुक्स, सो -1 स्ट्रेट फॉरवर्ड। 2 सिनेरियो कि फर्दर आप देखोगे कि एज कंपेयर टू द करंट मिड सम बुक्स आर हैविंग मोर पेजेस एज कंपेयर टू दैट, नो एलोकेशन पॉसिबल। एंड बिकॉज द बार हैज बीन सेट सच ए लो दैट इवन इफ की सारे पेजेस अंडर द बार अवेलेबल तो हैं, बट all the students are getting exhausted, few at the end are getting still remaining to be allocated, we need extra students, so that's not possible।
सो ओवरऑल दीज सारे केसेस को कंबाइन करके जो फाइनल आंसर मेरे पास बनेगा वो मैं रखूंगा. Combining all these scenarios, whatever may be the final answer I'm gonna get, that's what I'm gonna print. Okay. ठीक है. बोलो क्वेश्चन समझ आई सबको? क्वाइट a bit lots and lots of cases है इसमें. Question is clear for everyone. First tell me, Diya, Himanshu, Sagar, Arshpreet, question is clear? सारे केसेस पता लगे? पहले बोलो. ओके, एंड लेट मी जस्ट शो यू, मेरे पास पहले के भी सबमिशंस है. let me just show you that where how we have actually solved it. चलो later on के देख लेते हैं. सीपीपी ये वाली थी और सीपीपी के सॉल्यूशन से हाँ है ये. चलो लेटेस्ट वाला ही देख लो. ठीक है, बेटर एनालॉजी होगी. स्ट्रेट फॉरवर्ड देखो, हाउ वुड बी सॉल्व इट. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेटर देन n, कभी एलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा. सारे स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट्स रह जाएंगे जिनको एक को भी नहीं मिलेगा. ठीक है, सो -1 स्ट्रेट फॉरवर्ड में रिटर्न कर दूंगा इन दैट केस. ओके, ओवरऑल लेट्स टेक द सम. टोटल नंबर ऑफ पेजेस मुझे चाहिए, राइट. व्हाट्स द मैक्सिमम लिमिट, ऑफ पेजेस दैट आई कैन एलोकेट टू एनी स्टूडेंट. Let me calculate the sum of all the elements of the array. What are denoting pages of all books? सारे को सम कर लो. स्टार्ट इक्वल टू 0 भी सेट कर सकते हो, 1 भी सेट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. एंड वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ सम. स्टार्ट इज 0, एंड इक्वल टू सम. आप स्टार्ट 1 रख लो, एंड 0 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इनिशियली आई एम गोना बी सेइंग दैट इनिशियली व्हाट्स द नंबर ऑफ पेजेस, सॉरी ये पेजेस फाइनल आंसर है अपना. ठीक है, व्हाट्स द मिनिमाइज्ड वर्जन ऑफ maximum page I can allocate to any of the student. This pages indicate that final answer जो है वो कहाँ पे रहेगा, इस वेरिएबल पेजेस में रहेगा. ठीक है, इनिशियली कोई हमारे पास एलोकेशन अभी तक हुआ नहीं है, वैलिड एलोकेशन अब तक मिली नहीं, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड बी इनिशियलाइजिंग दैट टू -2. सो टिल द टाइम लेट्स स्टार्ट द बाइनरी सेट. स्टार्ट इज लेसर देन इक्वल टू एंड. Till the time there is at least a single element into the search space where I can, what I can consider as my answer, I would keep on searching. ठीक है, मिड कैलकुलेट कर लो और स्ट्रेट फॉरवर्ड दो कि करंट स्टूडेंट क्या है. दिस इज इंडिकेटिंग द करंट स्टूडेंट. ठीक है, करंट स्टूडेंट whomsoever you are allocating the page. आप कोई भी ऑर्डर में बुक एलोकेट कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट को. सिंप्लिसिटी के लिए 1 से लेके m तक करना बेटर है. ठीक है, स्टूडेंट 1 को कितनी पेज गई, 0. ओके, और इनिशियली मान के चलो कि हाँ करिस्पॉन्डिंग टू द करंट मिड, ये जो मेरी मिड वैल्यू है, अगर मैं इसको आंसर इसके अकॉर्डिंग मैं एलोकेट करना चाहता हूं, तो लेट्स अज्यूम दैट एलोकेशन वुड बी पॉसिबल. सो आई वुड बी असाइनिंग दैट टू ट्रू. इज द एलोकेशन पॉसिबल, लेट दैट बी ट्रू. अगर नहीं होता है तो बाद में फॉल्स कर दें. ठीक है, लेट्स स्टार्ट लुकिंग ऑन द बुक्स. लुकिंग ऑन द बुक्स फ्रॉम 0 till n. ओके, सो फर्स्ट केस, करंट बुक में जितनी भी पेजेस है दैट इज ग्रेटर देन द बार वी हैव सेट एज इन टर्म्स ऑफ मिड. ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है ये जो करंट बुक है ये मिड से ग्रेटर है, इसमें जो पेजेस है मिड से ग्रेटर है, तो ये बुक किसी भी स्टूडेंट को एलोकेट हो नहीं सकती. दैट मीन्स कीपिंग द मिड एज वन ऑफ माई पॉसिबल आंसर्स, एलोकेशन इज नॉट पॉसिबल. एलोक को फॉल्स करो, ब्रेक कर. ठीक है, अगर ये सिनारियो नहीं है तो आप सीधा क्या करो, आप करंट स्टूडेंट को में जितने भी पेजेस ऑलरेडी उसका एलोकेट हो चुकी है उसमें आप क्या करो, एरे ऑफ आई करंट पेजेस को ऐड कर दो. बट डू दैट, इसे आप तभी ऐड करो इफ इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड मिड. करंट जितनी भी पेजेस है स्टूडेंट को एलोकेट हुई है, एडिंग द करंट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक्स, इफ इट इज लेसर देन इक्वल टू मिड, देन ओनली डू द केस, देन ओनली ऐड इट. एल्स आप बोलो ठीक है अगर ये सिनारियो अपना फेल हो रहा है, करंट स्टूडेंट को जितनी भी बुक्स मैंने पेजेस एलोकेट किए दैट वुड गो ग्रेटर देन मिड, जो बार हमने सेट किए, मैं बोलूंगा अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट में मूव ऑन कर जाते हैं और उसको ये वाली P would be equal to straight forward A of I, जितनी भी पेजेस है करंट बुक की वो उसे एलोकेट कर देते. ठीक है, ओके. अगर आप नाउ सी फॉर हियर, आफ्टर स्टूडेंट प्लस प्लस करंट आइटरेशन में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो करंट स्टूडेंट को एलोकेट हो रहा है, या तो क्या हो रहा है एक न्यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को बुक एलोकेट हो रही है. तो आप एक चीज चेक कर लो कि अगर सपोज ये स्टूडेंट प्लस प्लस का ऑपरेशन हुआ होगा, हैज इट गॉन ओवरऑल ग्रेटर देन m. जितनी अवेलेबल स्टूडेंट्स मेरे पास है, क्या करंट स्टूडेंट की वैल्यू से ग्रेटर हो गई, हो सकता है ना.
हो सकता है ना करंट नंबर ऑफ पेज, मैं जब आया था आइट्रेशन पे आया तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट की जरूरत पड़ रही है हाइपोथेटिकली, तो स्टूडेंट की वैल्यू तब ग्रेटर देन एम हो जाएगी और मैं एलोकेशन को फॉल्स करके वापस से ब्रेक करूंगा यहाँ। आई वोंट बी एट ऑल कीपिंग इट। ठीक है, मैं बिकॉज जब भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कीपिंग द करंट मिड, ओके, कीपिंग द करंट मिड एज वन ऑफ माई पॉसिबल आंसर्स, एलोकेशन इज नेवर पॉसिबल, सो ब्रेक इट अप स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब देखो एट दैट इफ एलोक इक्वल टू ट्रू, ठीक है, अगर एलोकेशन पॉसिबल है, एलोकेशन इज ट्रू, एलोकेशन एलोक ये वेरिएबल कभी फॉल्स हुई नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स गॉट सक्सेसफुली एलोकेटेड बुक्स, ऑल द बुक्स आर आल्सो एलोकेटेड, बोथ वे इट्स पॉसिबल। तो मैं बोलूंगा ठीक है, ओवरऑल पेजेस जो मेरी आंसर सर्व कर सकती है मुझे इज इक्वल टू मिड, एंड मैं बोलूंगा ट्राई मिनिमाइजिंग दिस वैल्यू, एंड वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ मिड माइनस। अगर करंट मिड एज एन आंसर पॉसिबल है, इसको फर्दर मिनिमाइज करो। अगर पॉसिबल नहीं है, एलोक वेरिएबल इज ओवरऑल फॉल्स, जस्ट बोलो स्टार्ट वुड बी इक्वल टू दैट ऑफ मिड प्लस, स्टार्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ मिड प्लस, दैट्स कीप ऑन सर्चिंग। अगर एलोकेशन पॉसिबल नहीं है, आप सर्च को राइटर साइड में करो थोड़े ग्रेटर वैल्यूज के साथ, इफ समथिंग गोज पॉसिबल। एट द एंड पेजेस में जो भी सर्व होगा, पेजेस में जो भी फाइनल वैल्यू स्टोर होगा, जस्ट आप उसे रिटर्न करा, दैट्स इट। फाइन, कोई डाउट है किसी को, कोड कैसे किया पहले वो बताइए। हाउ आई हैव कोडेड द एंटायर प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी डाउट्स, डू यू हैव एनी डाउट्स, पहले बोलो। हाउ आई हैव कोडेड द एंटायर प्रॉब्लम, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बताओ तो कोई, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बताओ तो कोई, क्या मिलेगी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इट वुड बी। ओके, सम ऑफ व्हाट इज द सर्च स्पेस, वन से लेके सम ऑफ ऑल पेजेस, सम ऑफ एरे, सम ऑफ एरे, ठीक है। सो क्या हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स आई एम डूइंग द बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च कितनी बार हो रही है, लॉग ऑफ सम, log of sum of array itni, for these number of times I am iterating for the binary search, each and every of the time you are performing the binary search I am iterating over all the books, जो भी करंट मिड वैल्यू है, फॉर दैट आई एम आइट्रेटिंग ओवर ऑल द बुक्स, सारे बुक्स पे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ सारी बुक्स एलोकेट हो पाएंगी या नहीं। सो इनटू एन, for all the iterations I am performing in the search space related to that of binary search repeated half of division, log of sum is the number of times overall binary search आपकी चलेगी। ठीक है, हर एक बाइनरी सर्च का इटरेशन के लिए आप n टाइम्स बुक पे सर्चिंग कर रहे हो, एलोकेट स्टूडेंट्स को कर सकते हैं या नहीं। सो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी इज n इंटू लॉग ऑफ सम ऑफ एरे, फाइन। ठीक है, कोई डाउट है, n इंटू लॉग ऑफ सम ऑफ एरे, कोई डाउट है किसी को, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड कोड वाइज कोई भी डाउट है आप लोगों को तो बताइए, अप्रोच वाइज, टाइम कम्प्लेक्सिटी वाइज एंड कोड वाइज, किसी को कोई डाउट है। So mostly these are the problems, quite standard problems of binary search that we have seen, right? सारे बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, मुझे बताओ, सारे बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट्स आप सबको क्लियर है, वॉट एवर वी हैव टेकन सो फार। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, ये यूजुअली आपकी जो पेज एलोकेशन की प्रॉब्लम है, इट गोज अ लिटिल बिट हायर बिकॉज इसमें कुछ केसेस देखने पड़ते हैं, कौन से केस में क्या है, कौन से केस में क्या नहीं है, करेक्ट, फाइन। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप लोगों को बाइनरी सर्च के सोफर। सॉर्टेड रोटेटेड एरे हमने देखी, स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम देखी, लोअर बाउंड अपर बाउंड काउंट द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ये भी देख लिया, और ये आपकी जो स्पेस के ऊपर सर्चिंग है, स्पेस सर्चिंग प्रॉब्लम्स, we tried to figure out that okay there is a space that's coming and based on the space I have to take calls कि current mid value of the space आंसर में पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स, एग्रेसिव काउज हमने देखी थी उस दिन, आज क्या देखी हमने, पेज एलोकेशन के प्रॉब्लम, और भी एक दो प्रॉब्लम अगर कराना है तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ बाइनरी सर्च। मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर डन, most of the problems are done and we can move on to stacks queues and linked list in the next session। ठीक है, स्टैक्स क्यूज एंड लिंक लिस्ट को नेक्स्ट सेशन से ले सकते, स्टैक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई डाउट किसी को बोलो, so far whatever topics we have done, are there any doubts you people are having? सबको समझ में आया है टॉपिक्स, टॉपिक समझ में आई सारी जितनी भी हमने ली,
Everyone has got the topics well. All of you, कितने लोग हो वैसे, दिख भी नहीं रहा यार. Okay then, so let's wrap up here and next class is tax start कर देंगे. ठीक है, next class is tax start कर देंगे.